Hello kids, welcome back to our EVS class. In a previous class, we learnt about clean water. Let's revise what all we have learnt in clean water. But before revising about clean water, we will revise about water purification. So, shall we start? Water purification. Water comes to our homes from several sources. Water comes to our home from several sources. It comes from where? It can come from river, lake, pond, well और ट्यूबवेल. पानी हमारे घर कहाँ से आता है? पानी हमारे घर बहुत सारे सोर्सेस से आता है. जैसे कि स्ट्रीम से आ सकता है, पॉन्ड से आता है, रिवर से आ सकता है, लेक से आ सकता है और वेल, ट्यूबवेल या फिर टैंक कहीं से भी आ सकता है. जब वो पानी हमारे घर आता है तब दिस वाटर में बी इम्प्योर. वो पानी ऐसे गंदा हो सकता है. नदी का पानी आपने देखा है, वो पूरा साफ नहीं रहता. उसमें धूल रहती है, मिट्टी रहती है, गंदगी रहती है, कीटाणु रहते हैं, राइट? दिस वाटर में बी इम्प्योर. इम्प्योर मीन्स गंदा. लाइक दिस इज एन इम्प्योर वाटर बिकॉज इट हैज डस्ट, dirt and many other things in it. Treatment of water is therefore necessary. इस पानी की सफाई बहुत ही जरूरी है. So kids, what will happen if you drink this water? What will happen if you drink this dirty water? You will fall sick. आप बीमार पड़ जाएंगे. क्या आप ये पानी पी सकते हैं? No, never. So treatment of water is therefore necessary. The water is stored in tanks and reservoirs, is filtered and disinfected to make it germ-free and pure before it reaches our home. The water stored in tanks and reservoirs is filtered and disinfected. Here we learned that, see here, this water, the rainwater, is stored in tanks and reservoirs. ये जो बारिश का पानी आता है स्ट्रीम में आता है, फिर धाराओं में जमा होता है, तालाब में जमा होता है, रिवर में जमा होता है, लेक में जमा होता है, वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स में जो जमा होता है, ये जो पानी बारिश से आकर यहाँ जमा होता है, ये हमारे घर में पहुंचने से पहले ये कहाँ स्टोर होता है? ये होता है स्टोर टैंक्स एंड रिजर्वर में. बारिश का पानी जो स्ट्रीम्स में, तालाब में, झील में, रिवर में, वेल्स में, ट्यूबवेल्स में, टैंक में आकर जमा होता है, वो हमारे घर आने से पहले इसको कहाँ जमा करते हैं? टैंक्स में और रिजर्वर में. टैंक मीन्स टंकी, रिजर्वर मीन्स जलाशय. तो हमारे घर आने से पहले ये सारा पानी रिजर्वर और टैंक्स में जमा कर देते हैं. Then the water stored in tank and reservoirs is filtered and disinfected. जब नदी का पानी, झील का पानी टैंक और रिजर्वर्स में जमा होता है तो उस पानी को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है और उसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है. फिल्टर किया जाता है और डिसइंफेक्टेड किया जाता है. करना मीन्स कोई भी चीज की गंदगी निकालना, उसको फिल्टर करना कहते हैं. एंड देन डिसइंफेक्टेड मीन्स उस चीज से कीटाणुओं को निकालना, उसे डिसइंफेक्शन करना कहते हैं. तो ये जो टैंक में और रिजर्वर में पानी रहता है उसे फिल्टर किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है, एंड देन it is sent to our home. It is supplied to our homes. The water stored in tanks and reservoirs is filtered and disinfected to make it germ-free and pure
before it reaches our home. After filtering and disinfecting impure water, the water becomes pure. After filtering and disinfecting this dirty water becomes pure. Now you can drink this pure water. So kids, in our previous class we learnt about what pure water is and what impure water is. पिछले क्लास में हमने देखा गंदा पानी कैसा होता है और साफ पानी कैसा होता है. Now we will learn more about clean water. Clean water means what? साफ पानी. So let's learn more about clean water. We must make sure that our water is clean and pure. We must drink only clean water. Water can be purified by boiling and filtering. Nowadays, water is also purified using electronic water filters. At home, water can be stored in clean vessels or clean pots. These must be covered with a clean plate or a clean cloth. A clean glass must be used for removing water from a vessel. We make the water impure by bathing, washing clothes and throwing waste in the lakes and rivers. Impure water leads to sickness and disease. We must not waste water. Use water only when it is needed. Water used for washing vegetables or grains can be used for watering plants. We must make sure that our water is clean and pure. We must make sure that our water is clean and pure. हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो पानी यूज़ करते हैं, जो पानी का हम उपयोग करते हैं या फिर पीते हैं, वो पानी साफ़ रहना चाहिए. वो पानी कैसा रहना चाहिए? साफ़ और स्वच्छ. We must drink only clean water. We must drink only clean water. हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमें सिर्फ साफ़ पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में क्या रहता है? गंदे पानी में धूल, मिट्टी और कीटाणु रहते हैं, जिसको पीने के बाद हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं. सो वी मस्ट ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर. Water can be purified by boiling and filtering. Water can be purified by boiling and filtering. Boiling means पानी को उबालना. Boiling means पानी को उबालना. Filtering means गंदगी निकालना. पानी की गंदगी निकालकर पानी को साफ़ करना. तो पानी को साफ़ कैसे किया जाता है? अगर हमें शुद्ध पानी पीना है, साफ़ पानी पीना है, तो हमें पानी को पहले साफ़ करना पड़ेगा. उसकी गंदगी या फिर धूल, मिट्टी, जो भी कीटाणु हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालते हैं? वी कैन प्यूरीफाई वाटर बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग. वाटर कैन बी प्यूरीफाइड बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग. पानी को हम साफ़ कैसे कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग. एक तो उसे गरम करके, उबाल के उसको हम साफ़ कर सकते हैं. पानी को उबालने से उसके अंदर के कीटाणु मर जाते हैं. बाय फिल्टरिंग वी कैन रिमूव द dirt from the water. So water can be purified by boiling and filtering. Nowadays water is also purified using electronic water filter.
Nowadays, water is also purified using electronic water filter. आजकल लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी को उबालते नहीं हैं या फिर सिर्फ पानी को छान कर उसको साफ़ नहीं करते हैं. आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर से पानी को साफ़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर एक ऐसी मशीन रहती है जिसमें पानी डालने से, गंदा पानी डालने से वो खुद से मशीन से साफ़ होकर बाहर आता है. हमें उससे स्वच्छ और शुद्ध पानी मिलता है. At home, water can be stored in clean vessels or clean pots. At home, water can be stored in clean vessels or clean pots. जो हम साफ़ पानी पीते हैं हम उसे कहाँ जमा कर सकते हैं? स्टोर करना मीन्स जमा करना. या तो हम क्लीन वेसल मीन्स एक स्वच्छ साफ पतीले में, या फिर क्लीन पॉट स्वच्छ साफ मटके में हम पानी को जमा कर सकते हैं. जो साफ़ पानी हम पीना चाहते हैं उसे हमें कहाँ जमा करना चाहिए? क्लीन वेसल साफ पतीले में या फिर साफ मटके में. These must be covered with a clean plate or a clean cloth. These means clean vessels or clean pots. These must be covered with a clean plate or a clean cloth. जो पतीले में या फिर जो मटके में हम पानी जमा करते हैं उसे हमें ढक कर रखना है. किससे ढक कर रखना है? With a clean plate or a clean cloth. एक तो हमें क्लीन प्लेट का उपयोग करना चाहिए या फिर कोई एक स्वच्छ से कपड़े का उपयोग करना चाहिए ताकि हम इस पतीलों को या फिर इन मटकों को ढक के रखें. सो किड्स, टेल मी, व्हाई डू वी नीड टू कवर these vessels and pots? So that dust, germs or any kind of dirty things should not enter in the water that we are going to consume or drink. A clean glass must be used for removing water from a vessel. A clean glass must be used for removing water from a vessel. अगर हमें पतीलों से पानी लेना है तो हमें एक स्वच्छ ग्लास का उपयोग करना चाहिए. हमें कोई भी गंदा बर्तन या फिर गंदा ग्लास इन पतीलों में नहीं डालना चाहिए, वरना जो गंदगी उन ग्लास को लगी हुई रहती है या फिर बर्तन को लगी रहती है वो उस पानी में जा सकती है. सो we must use a clean glass to remove water from the vessel. We make the water impure by bathing, washing clothes and throwing waste in the lakes and rivers. We make the water impure by bathing, washing clothes and throwing waste in the lakes and rivers. तो बच्चों ये बताइए, जो गंदा पानी की हम बात कर रहे हैं वो पानी गंदा कैसे होता है? पानी गंदा कैसे होता है? We make the water impure. पानी गंदा करने में हमारा ही सबसे बड़ा हाथ होता है. We make the water impure. हम पानी गंदा करते हैं. कैसे गंदा करते हैं? By bathing, washing clothes and throwing waste in the lakes and rivers. We get water from where? We get water from lakes and rivers. हमें पानी कहाँ से मिलता है? झीलों से और नदियों से. जब लोग नदी में और झीलों में जाके स्नान करते हैं या फिर अपने गंदे कपड़े धोते हैं या फिर अपने पशुओं को धोते हैं या फिर कुछ गंदा सामान फेंकते हैं, तब झील और नदियाँ गंदी हो जाती हैं और यही गंदा पानी हमारे घर तक पहुँच जाता है. सो who makes the water impure? We make the water impure by bathing, washing clothes and throwing waste in the lakes and rivers.
impure water leads to sickness and disease. Impure water leads to sickness and disease. Impure water means गंदा पानी, अशुद्ध पानी. Impure means अशुद्ध. Pure means शुद्ध. Impure means अशुद्ध. Impure water leads to sickness and disease. So kids, tell me, जब आप गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? गंदे पानी में क्या रहता है? गंदे पानी में गंदगी रहती है, धूल, मिट्टी, कीटाणु सब रहते हैं. तो ये पानी पीने से, ये अशुद्ध पानी पीने से हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं. इम्प्योर वाटर लीड्स टू सिकनेस एंड डिसीज़. हमें कई तरह के रोग आने लगते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं. We must not waste water. We must never waste water. We must not waste water. हमें पानी को कभी भी बेकार में यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें पानी का अच्छे से उपयोग करना चाहिए. We must not waste water. Use water only when it is needed. Use water only when it is needed. पानी का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत रहे. पानी का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसकी कोई ज़रूरत रहे. We should not waste water. We should use water only when it is needed. पानी का उपयोग तभी करें जब उसकी ज़रूरत हो. Water used for washing vegetables or grains can be used for watering plants. Water used for washing vegetables and grains can be used for watering plants. जो पानी का हम सब्जियां या फिर फ्रूट्स धोने में या फिर धान्यों को धोने में उपयोग करते हैं, वो पानी से हम क्या कर सकते हैं? पेड़ और पौधों को वो पानी डाल सकते हैं. जो फल या फिर सब्ज़ी हम धोते हैं पानी से, उस पानी को बिना फेंके सब फल और सब्ज़ी को धोने के बाद उस पानी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? उस पानी को हम पेड़ और पौधों में डाल सकते हैं, जिससे पानी का अच्छे से उपयोग हो सकता है. पेड़ पौधे भी अच्छे से बढ़ सकते हैं. So I hope you have understood the importance of clean water. And I hope now onwards you will drink only clean water and you will not waste water for any unnecessary purpose. Use water only when it is needed. मैं आशा करती हूँ कि आप अब से सिर्फ साफ़ पानी पिए, पानी का अच्छे से उपयोग करें, पानी को बेकार ना जाने दें. So kids, now we will move to our exercise part. See here are some questions. We need to answer them. I have already written the answers. So let's see. First exercise is answer the following questions. We need to answer the following questions. इन सवालों के हमें जवाब लिखने हैं. So the first question is, why must we drink clean water? Why must we drink clean water? हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए? And the answer is, drinking impure water leads to sickness and diseases, so we must drink clean water. Drinking impure water, गंदा पानी. Impure means गंदा पानी. Impure water means गंदा पानी. Drinking impure water leads to sickness. गंदा पानी पीने से क्या होता है? Sickness, बीमारी आती है. And diseases, अलग अलग तरह के रोग आ जाते हैं. So we must drink clean water. गंदा पानी पीने से बीमारी और तरह तरह के रोग आ जाते हैं. So we must drink clean water. इसलिए हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट वन इज नेम 2 ways by which water is made impure. ऐसे 2 चीज़ें बताइए जिसके वजह से पानी impure होता है, मीन्स गंदा होता है. Water is made impure by bathing, washing clothes and throwing wastes in the rivers and lakes.
पानी गंदा क्यों होता है? इट इज़ मेड इम्प्योर बाय बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड थ्रोइंग वेस्ट्स इन द रिवर्स एंड द लेक्स। नदियों में और झीलों में नहाने से, या फिर उसमें कपड़े धोने से, या फिर गंदी चीज़ें फेंकने से, या फिर कचरा फेंकने से नदी और तालाब, झीलें गंदी हो जाती हैं। सो अंडरस्टूड? कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हियर आर 2 sentences which are incomplete, so we need to complete it. Water can be purified by dash. Water can be purified, पानी कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं? Water can be purified by boiling and filtering or by using electronic water filters. We can purify the water by boiling and filtering or by using electronic water filters. At home, water can be stored in clean vessels or clean pot. At home, water can be stored in what? At home, water can be stored in clean vessels or clean pots. साफ बर्तन या साफ pots. Pots means मटका. मटके में हम पानी स्टोर कर सकते हैं. स्टोर मीन्स जमा करना. थर्ड वन इज राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमें राइट टिक करना है, वरना क्रॉस करना है. इम्प्योर वाटर मेक्स अस हेल्दी. गंदा पानी हमें हेल्दी बनाता है. इज इट राइट? नो, दिस इज रॉन्ग. इम्प्योर वाटर मेक्स अस सिक. सो दिस स्टेटमेंट इम्प्योर वाटर मेक्स अस हेल्दी इज रॉन्ग. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. Plants need water to live. Yes, plants need water to live. पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए. Is it right? Yes, right. So we have finished our lesson called clean water. So kids, here is a fun activity. Find out from your parents the method used to filter drinking water at योर होम. आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है. आपको अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा को पूछना है और जानना है कि आपके घर पानी कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे साफ करते हैं. सो आई होप यू विल डू इट. एंड हियर इज अ नोट. क्लीन एंड प्योर वाटर इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. क्लीन एंड प्योर वाटर इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. साफ और स्वच्छ पानी अच्छी सेहत के लिए नेसेसरी है, मीन्स ज़रूरी है. सो वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर.